So, dear students, today I'll not be teaching, but I'll be discussing something regarding the importance of self-study. Do you hear me? Yes, sir. All right. Look, students, जो भी हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, अब मैंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैट. Electrostatic is that branch of physics which deals with the charge at rest. Can charge be at rest? No, it is assumed to be at rest because it is associated with energy. How the charge was developed whenever 500 BC, it was Thales of Miletus, in 500 BC, Thales of Miletus rubbed yellow vitreous rod or material with fur coat, and he found that the dry leaves were attracting, and he decided what it makes to be getting attracted. He could not get the reason, but later it was found that there is a frictional electrostatics and frictional electricity. There is a transfer of electrons from one body to another as work is done, and that work is basically on account of the mechanical work done, the electrons leave one body to the other, and one acquires a positive charge and other acquires a negative charge. याद है ना? Yes, sir. Now, फिर उसके बाद we started so many things, difference between charge and mass, and then I told you that Coulomb's law, Augustin de Coulomb, in scalar form, F is equal to Ke Q1 Q2 upon R square. Ke is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 to raise power 9 Newton meter per Coulomb square, and epsilon naught is absolute permittivity of the free space, that is 8.85 10 to minus 12 Coulomb square meter square Newton inverse. A permittivity is basically the ability to restrict the charges. Absolute permittivity of the free space is basically the permittivity of the vacuum. Whenever the two charged bodies are interacting, and it will hold the body at its native position, that is called permittivity. Permittivity is the ability to restrict the charges. Then I've told you the relative permittivity, that is epsilon r, right? Epsilon r is nothing but epsilon upon epsilon naught, and that is also called K. K is called dielectric constant, and epsilon r is also called dielectric constant. It's also called specific inductive capacitance, which we will be studying in capacity. And after that, I've told you then what is the permittivity of the vacuum, that is 1. Then I've told you the CGSE and SI units, CGSE and SI units in electrostatics, Coulomb and stat Coulomb. And then I've told you the importance of the point charge, and Coulomb law is applicable to the point charges when the charges are at rest. And I have told you what is unit charge. Unit charge is hollow charge which cannot be induced. It does not produce its own electric field. It is represented by Q naught or plus 1. How's it? I've revised. Yes, sir. What makes me to revise so quickly? No. What I have written? Self-study. Yes. If I don't do self-study, perhaps I would not have been sharing this kind of quick informations. मैंने पहले आपको डेमो दिया, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा कि आप ऐसे बोलो, मैं बोल रहा हूं बिना बुक के, है ना? तो मुझे भी आप ऐसे ही बोलने चाहिए. अब उसके लिए
सेल्फ स्टडी तो हो गया छोटा, इतना सा हो गया ना। हाँ जी सर। लेकिन इसका गवारा बड़ा हो गया। किसका? पहले हम ये ट्यूशन गए, फिर दूसरी ट्यूशन गए, फिर तीसरी ट्यूशन गए। हाँ या ना? अब हम घूम रहे हैं तो बेटा टाइम बहुत वेस्ट होता है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो सब्जेक्ट आपके पास आएगा नहीं। उसके लिए आपकी सेल्फ स्टडी कम से कम डेली की डेली, अब मई के अंदर, इन द मंथ ऑफ मई, सेल्फ स्टडी चाहिए 5 आवर्स पर डे। ओके? अगर मई के अंदर आपकी सेल्फ स्टडी 3 आवर्स है तो जून में सेल्फ स्टडी हो जाएगी 8 आवर्स अ डे। अगर जून में आपकी फिर 3 आवर्स है तो जुलाई में आपकी सेल्फ स्टडी हो जाएगी 10 आवर्स प्लस डे। और जुलाई अगर क्रॉस कर गया, अगस्त आ गया, तो तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, कोप नहीं कर पाओगे। कुछ समझ आया? हाँ जी सर। तीसरी चीज, 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है। ऑल राइट? 5 टाइम्स आपको 24 आवर्स में मील लेने हैं। कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, कभी इवनिंग टी, मिल्क, स्नैक, कुछ भी, डिनर, बिस्किट्स। ठीक है? जी सर। 2 आवर्स आपको तैयार होने में, नहाने में, कुछ घर का काम देखने में लग जाते हैं। हाँ जी सर। और फिर सेल्फ स्टडी के लिए अलग से आपको देखना पड़ेगा, जिसमें सेल्फ स्टडी प्लस ट्यूशन भी जाना है। अब इसको एनालिसिस करो आप अच्छे से। अगर आप लोगों के पास 8 घंटे की नींद नहीं है तो आपका जो ब्रेन है उसको, मैं तो खैर मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूं, अब तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, उसको प्रॉपर न्यूरॉन्स, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, स्लीपीनेस रहेगी, नींद ज्यादा आएगी, जिससे कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। कंसंट्रेशन नहीं बनेगी अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लोगे। नींद कब आएगी? जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी कब करोगे? जब आपके पास टाइम होगा। तो ये सारी चीजें एनालाइज करो। अगर ये सारी चीजें एनालाइज होने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि यार मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। इसको बोलते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन।
हम खुद को इवेलुएट करते हैं। मैं भी सेल्फ इवेलुएट करता हूं। मैंने YouTube पे कितना लेक्चर डाला। एक YouTube पे लेक्चर डालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सेम वे आप एकदम थोड़ी कि जी मैंने सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, ठीक है, तो आप में एकदम थोड़ी, देखो जैसे ये लाइट है, एकदम थोड़ी ये सो गए आंख बंद करके, ऐसे थोड़ी मैंने सोना आंखें बंद नींद आ गई, होता है ऐसा? नींद तो तभी आएगी जब आएगी। आपने कल बोला था सर, जब जब जो जो होता है तब तब सो होना है। तो आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि यार मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आपको कम से कम डेली अपने साथ 30 मिनट्स बात करनी होगी कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मेरी सेल्फ स्टडी कब हो रही है। और एक आप दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, हमने खुद अपने आप से कंपेयर करना है। उसके लिए आप एक रजिस्टर लगाओ, उस रजिस्टर पे डेट वाइज, कल मई 1 है तो डेट वाइज उस पे चलो आप। फिर देखो एक वीक 7 डेज अपना रूटीन लिखो कि मैंने इतने घंटे, मतलब आप सारे सब्जेक्ट रोज नहीं कर सकते। अच्छा, आपको अक्सर यह बोला जाएगा कि बेटा बायो आती है 120 मार्क्स की, है ना? नहीं सर, 360। चलो 360 की, ठीक है, बायो 360 की है। फिजिक्स कितने की है? 120 की, 180, और केमिस्ट्री 180, 360। 360 सभी लोग फोकस करते हैं क्योंकि बायो कंपैरेटिवली स्कोरिंग है। इस बात को मानते हो ना? केमिस्ट्री पे भी लोग अच्छा कर जाते हैं, बायो तो करते करते केमिस्ट्री में भी लोग अच्छा कर जाते हैं। लेकिन पंगा कहां पड़ता है? फिजिक्स में। जो ये फिजिक्स है इसमें पंगा पड़ता है। क्या बोले? अब बायो सबकी अच्छी है, केमिस्ट्री कुछ ज्यादा, बायो सबकी ही अच्छी है, केमिस्ट्री कुछ कम की अच्छी है, फिजिक्स जितने लोगों की अच्छी है वो बाजी मार जाते हैं। एक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म में बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, बोलते हैं कि नहीं? तो इसी तरह से फिजिक्स इज द सिलेक्शन डिटर्मिनिंग सब्जेक्ट। तो आपको किसी भी हालत में फिजिक्स में अगर आपकी परफेक्शन आ गई तो बायो और केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी। ये आप पल्ले बांध लो। मैं बच्चों के बॉडी लैंग्वेज को नोट करता हूं जब कैमरे, क्योंकि हमारी क्लास में तो कैमरा ऑन ही होता है, बंद नहीं होता, तो मैं एक एक बच्चे की बॉडी लैंग्वेज नोट करता हूं। और ऑनलाइन टीचिंग का एक बड़ा प्लस पॉइंट है, मालूम क्या? बोलो। कैमरा जो है ना, बंदे के फेस एक्सप्रेशंस को बिल्कुल दिखा देता है। अगर मैं गुस्से में हूं तो आपको
मेरा गुस्से वाला चेहरा दिखाई देगा। मतलब कैमरा झूठ नहीं बोलता, हाँ या ना? हाँ जी। इसी तरह से लोग कहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग में बच्चे से इंटरेक्शंस नहीं होती। विपिन सर कहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग में भी उतनी ही इंटरेक्शंस होती है, बल्कि ऑनलाइन टीचिंग में हर बच्चा कैमरे में दिख रहा है। जी सर। मेरी बात फॉलो कर रहे बच्चे? हाँ जी। तो बेटा अब मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं समझाने वाला, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, कल है May 1। हाँ जी सर। 7 डेज आप रूटीन बनाएंगे अपना। रूटीन नहीं बना करता होता। 7 डेज आप लिखेंगे अपनी एक्टिविटीज को। वो मुझे नहीं, मैंने नहीं पूछनी ना, मैंने नहीं, वो खुद आप अपने आप से पूछोगे। फिर आप एनालाइज करोगे कि यार मैं नहीं कर पा रहा कुछ या कर पा रही हूं। फिर आपको जिस पे फेथ है उस टीचर से बात करो। मम्मा से बात कर सकते हो, पापा से बात कर सकते हो, फ्रेंड से भी बात कर सकते हो कि यार मेरा नहीं चल रहा है सही, ठीक है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं। मेरे अच्छे पढ़ाने से आपको तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आप अच्छा नहीं पढ़ोगे। मेरे अच्छे पढ़ाने से स्टूडेंट आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप खुद अच्छे से नहीं पढ़ोगे। यस। और उसको बोलते हैं क्या? उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, सेल्फ इवैल्यूएशन, ये बहुत ही जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। अब हमने डरना नहीं है। मैं भाषण दे रहा हूं, ठीक है, मैं बन गया बाबा, प्रवचन दे रहा हूं, वाह वाह सर क्या बात है, आप तो महान हो, क्या बात है। अब मैं आपसे एक बात करता हूं। आप एक शादी में गए, वहां से प्लेट उठाया, हाँ जी। वहां पर रूल ये है कि आप आधे घंटे से ज्यादा शादी में नहीं रुक सकते। प्लेट उठाई, पनीर भी डाल लिया, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। 5-6 मिनट बाद पनीर की बारी आई, आहा पानी आ रहा है मुंह में। फिर उसके बाद आपने मेथी मलाई मटर डाला 2। वैसे वो हाइब्रिडाइजेशन शुरू हो गया, अब SP3 SP4, बीच में पनीर, बीच में मेथी मलाई मटर, फिर गोभी भी डाल ली। 15 मिनट बीत गए, 15 मिनट बच गए। फिर उसके बाद एक और डिश डाल ली, मशरूम, 2 प्याजा जिसमें प्याज 2 होते हैं। फिर उसके बाद आधा घंटा रुकना है, 20-22 मिनट हुए, अब रोटी नहीं मिल रही, ठीक है, वो रोटी वाला ही नहीं आ रहा, क्या करें, थोड़े से चावल खा लिए, वो चमचा ऐसे चल रहा है, फिर रोटी वाला आया। इतने में बोला चलो जी टाइम आउट, बाहर। ना सब्जी खा सके, ना राइस अच्छे से खा सके, ना कुछ खा सके। यही हम करते हैं कि 24 घंटे में से हम फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी लगे रहते हैं। उसके बाद जब सेल्फ स्टडी करने का टाइम होता है, सो गए, या फिर बैठे बैठे सो गए, आंखें खुली हैं। जैसे ड्राइवर लोग नहीं होते, लॉन्ग ड्राइव में नींद आ रही होती है, आंखें खुली हैं, फिर भी ऐसे ऐसे सो रहे होते हैं, हाँ या ना? मैं ये नहीं कह रहा ऐसा आपके साथ होता है, मतलब नहीं सर, होता है। तो फिर उसके बाद अंदर से गिल्ट आती है, मतलब अपने आप को खुद ही डिमोरलाइज करना शुरू कर देते हैं हम। अरे यार ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। फिर आपको खिंच चढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर आपको बोलेगा बेटा खाना खा ले, खा लेते हो, सारा दिन खाने की बात करते रहते हो, काम मेरा हो नहीं रहा पता है कुछ। फिर कोई बंदे बोलेगा तू रेस्ट करना, आना हर दिन ट्यूशन से कम करके मैं सोने दे, मन थोड़ी देर लाइट ऑन करती, किसी ने मेरी कमरे दी, क्यों लाइट ऑन करती हो, इतनी नींद आई सी मैंने पता की मैं थकी हुई है। फिर उसके बाद इतनी ज्यादा टाइम कम होता है, स्कूटर के पेट्रोल की सुई ई के पास होती है, फिर भी पता नहीं कोई शक्ति है जो ले जाती है, वापस ले जाती है। मेरी तो बच्चा भी भर्ती वाला, हाँ जी, एक्टिवा वाला भी करती है। मैं विपिन सर हूं, मैं बच्चों की आत्मा के अंदर रहता हूं, पर मैं फिर उसके बाद आपको ये लगा रहता है भाई ये तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। फिर उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूटर पे जा रहे हैं, आगे पुलिस अंकल ना रोक ले, चल नहीं चक्कर नहीं, वो तो हैवी डैडी मेरा प्रेस रिपोर्टर है, चलो मैं बोल दूंगी, बट फिर भी टाइम तो वेस्ट होता है कि नहीं। हाँ जी सर। वन मोर प्रॉब्लम स्टूडेंट यू फेस, कि जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और सर ने कुछ पूछा, साथ वाले फ्रेंड ने बता दिया और मेरे को वो आया नहीं, तो साथ के साथ एक हमारे ऊपर गिल्ट का अटैक आता है, यार उसने बता दिया मेरे से क्यों नहीं हुआ, ये होता है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब यहां से आप अपने अंदर हर बार अपने आप को डिमोरलाइजेशन करने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। जो आपका कोचिंग ट्यूशन का बैग है, उसमें बायोलॉजी है, उसमें केमिस्ट्री है, उसमें फिजिक्स है, उसमें पानी की बोतल है, उसमें खाने का कुछ सामान भी है और कुछ पैसे भी है, एक अंदर से और भी रखे हुए हैं इमरजेंसी 100 रुपए, ताकि अगर कहीं कोई ना हो तो वो हो जाएंगे, 2 पेन भी रखे हुए हैं, वो लेके आप स्कूटर पे जा रहे हो और उसके साथ यार कल मैंने आंसर ही नहीं किया सर को, सर क्या सोचेंगे मैं पढ़ता या पढ़ती नहीं हूँ, ठीक है मेरे क्लास फेलो क्या बोलेंगे, यार नंबर तो तेरे 90% है फिर भी तेरे को आंसर नहीं आया। ये सारी चीजें दिमाग में एकदम से घूम रही होती हैं और हम अपने आप को डाउन करने का, डिमोरलाइज करने का हर तरह से सामान इकट्ठा करके रखा होता अपने बैग में। उसमें केमिस्ट्री नहीं होती, फिजिक्स नहीं होती, बायो नहीं होती, या नॉन मेडिकल वालों का मैथ नहीं, तो साथ में डिप्रेशन भी होती है। कॉपी खोलेंगे यार ये करना है, अच्छा फिर उसके बाद सर बोलेगा बेटा परसों मेरा टेस्ट है, मैंने इस टेस्ट में मार्क्स लेने हैं, और उसमें फिर एक और टेंशन है, टेस्ट से डर नहीं लगता साहब, मार्क्स कम आने से भी डर नहीं लगता साहब, लेकिन जो क्लास में वो पेपर बांटते हैं ना साहब, उसमें पता लगता है कि नूर तुम्हारा हो गया यहां पर चकनाचूर है। तो बोला अरे यार ये क्या हो गया, ओ हुजूर अपन ने तो खाया था इतना खजूर, अगली बार नंबर लेके आऊंगा जरूर, ठीक है आई एम श्योर, ठीक है डोंट वरी। ये चीजें होती हैं माय डियर स्टूडेंट, ये है चाइल्ड साइकोलॉजी। एंड जो बच्चे हमारे देश में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक ट्यूशन पढ़ो, मुझे ट्यूशन पढ़ाओ, अबे सेल्फ स्टडी कब करोगे, वो गाना ना सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक ट्यूशन पढ़ो, तो सेल्फ स्टडी कब करोगे जरा मुझे बताओ। सो डियर स्टूडेंट, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा, मालूम,
हाँ जी। क्यों नहीं पढ़ा रहा? बिकॉज आई कैन नॉट डू द जस्टिस। दूसरा, मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं टेक्नोलॉजी का क्यों ना इस्तेमाल करूं? मैं सीधा आपके घर में आपके पेरेंट्स के सामने बात कर रहा हूं, मैं सीधा आपके साथ आपके बेडरूम में जाके आपको पढ़ा रहा हूं, आप बैठे हो सामने लैपटॉप लगा के, है ना? और आपने अपनी क्लास, चलो अभी आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हो, अब आपकी क्लास थी 9:15, आपने बोला सर 9:15 रख ले, मैं नहीं 9:30 रख लो, बोला ना? हाँ जी। तो इससे क्या होता, कॉन्फिडेंस होता कि सर कोऑपरेटिव है। लेकिन जब और बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे फिर मुश्किल हो जाएगी। 15 मई तक कर लो मौजा ही मौजा, फिर बिजी हो जाएंगी फौजा। फिर दिक्कत क्या है कि आप एक सिस्टम च चलते जावांगे, जब हम सिस्टम में घुस जाएंगे तो ये बहुत जरूरी है हमें एक दूसरे के साथ इवेल्युएशंस करना। मैंने 1 महीने से हो गया आपको पढ़ाते हुए, एक चैप्टर आपका कंप्लीट करवाया। अभी उस चैप्टर के कंसेप्चुअल शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर आपने गो थ्रू नहीं किए हैं। नहीं सर, ये तो कर लिए, न्यूमेरिकल्स कर लिए। जहां आपको डाउट आपने पूछा ही होगा, हाँ जी सर, मैं पूछी तो थी आपसे। पूछ लो जितने मर्जी। मैं आपको बोल रहा हूं डाउट, देखो एक ड्रॉबैक है मेरा कि मैं आपका टेस्ट उस तरह से नहीं ले सकता ऑफलाइन की तरह। लेकिन एक बात बताओ, मैंने जो जो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है, भाषण जो पेल रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं भाषण पेलन। अरे हाँ ना, ये जरूरी है टाइम टू टाइम। फर्स्ट टाइम मैंने आपको कुछ अजीब सा दिखा होगा। जो पटियाला के दूसरे टीचर है वो विपिन सर को कितना अभी भी फॉलो करते हैं। मैंने तो पहली बार दिखाया रंग, मैं डांट नहीं रहा, मेरा एक रिकॉर्ड है, मेरी एक लाइफ का फिलॉसफी है। जो मेरा दोस्त है वो मुझसे कभी नाराज नहीं होगा, हाँ जी। और उसका मेरा, मेरा उसका सब कुछ। अगर ऐसा नहीं है तो दोस्ती नहीं है। समझ आया? जी सर। अब मुझे किसी ने पूछा, सर मुझे किसी ने ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया। सर है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त। क्या है? बढ़िया दोस्त। बढ़िया दोस्त। करता क्या? ब्लॉक। तो फिर वो काहे का दोस्त है? नहीं सर। ब्लॉक करना तो बेइज्जती है। जी। तो फिर वो काहे का दोस्त है जब तक उसको, अब छोड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ये मानना है डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई माई का लाल, कोई माई की लाली, माई का लाल, माई की लाली। अब लाल है तो उसका जेंडर बदलेंगे तो वो लाली होएगा ना। वो आपको टॉप नहीं कर सकता, करवा सकता। ये देखो, ये भी बोल रहे हैं हमारे चीमा साहब, नहीं करा सकता ना। नहीं सर। तुम ना भगवान के पास, आप भगवान के पास ट्यूशन रख लो। ठीक है? साक्षात सृष्टि निर्माता के पास ट्यूशन रख लो। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना तो भगवान के पास ट्यूशन रख के भी फेल हो जाओगे। You can have a coaching from God, but if you don't do the self-study, even God will not help you. God helps those who do self-study. आपको बुरा लग रहा होगा विपिन सर आज पढ़ाने की बजाय भाषण। नहीं सर, ये तो मेरे फायदे के लिए ही है, अपने फायदे के लिए बता रहे हो। ऑफलाइन में ना मैं
बहुत डांटता था, 1.5 घंटा। बच्चे रोना शुरू कर देते थे। अगले दिन क्लास में एकदम से सभी लोग रैंडम कर, अच्छा अब एक काम करेंगे हम, कल से लेक्चर होने के बाद मैं रैंडम किया करूंगा। रैंडम क्यों? I will tell you. What is charge? Sir, charge is a property which is associated with mass. What is mass? Which has got a energy and not conserved. Charge is conserved. Mass is yet to be established. And so on, so on, so on, so on, so on, like that. रैपिड फायर राउंड्स। Rapid fire round. अभी आपने देखा नहीं मेरा डेमो स्टार्ट में? +1 तो पढ़ी है तूने? हाँ जी। Unit, it is the standard measurement of a physical quantity. Physical quantity is that quantity which can be expressed in terms of certain laws. Dimensions are the powers which are raised to fundamental quantity to represent a physical quantity. है ना? हाँ जी। ऐसे y equal to x tan theta minus half gx square u square secant square theta equation of parabola. H is equal to u square sin square theta upon 2g. T is equal to 2u sin theta upon g. R equal to u square sin 2 theta upon g. Horizontal range maximum is 4 times height. है ना? हाँ जी। Tau z equal to x of y minus y of x. L equal to rp sin theta or pd. है ना? Torque equal to I alpha. A equal to g sin theta. That is the acceleration which makes the pendulum to come down. So dear Noor, कल से हम रैपिड फायर किया करेंगे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी। और मेरे बच्चे, आप बुरा नहीं मानना, मैंने ऑन रिकॉर्ड ही बोला सब कुछ, ठीक है? तो कभी कभी इस तरह की डोज मिलने से बच्चों को बेनिफिट होता है। और मैं कॉम्पस चैनल पे इसको डालूंगा, तो आप इसको कि फिजिक्स चैनल पे डाल दो, इट विल हेल्प यू। इसका हेडलाइन बनाएंगे, इफ यू कैन हैव कोचिंग फ्रॉम गॉड, बट इफ यू डोंट डू सेल्फ स्टडी, इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू। Thank you very much. God bless you. Tomorrow you will have to do self-study and self-evaluation for 7 days. After that you will tell me where do you stand. खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, किसी को हर्ट मत करो।